not a full-fledged utilization of the chapter. Okay. Syllabus point of view से it will be just थोड़ा सा part है entries and all. It will journal entries they ask at the time of issue. But otherwise, this topic has many new things included in the recent years. I'll be explaining those also. So thinking from the knowledge point of view, very much to gain, very important chapter, useful chapter आगे जाके. Okay, issue of shares, company accounts, base है company accounts का. Okay, इसके आगे फिर next year या फिर CA कर रहे हो तो फिर CA inter CA foundation में भी same chapter है आपको issue of shares. CA inter में you are having redemption of shares, buyback of shares, internal reconstruction, amalgamation, company final account. All are based on these concepts. ये concept बीच बीच में आते रहेंगे shares के आपको. Okay, so काफी यूजफुल है. ओके परफेक्टली करना. प्रीवियस ईयर तक इन द बोर्ड्स दिस चैप्टर वाज एन ऑप्शन विद डिसोल्यूशन. दिस ईयर दे हैव मेड इट almost compulsory. So out of 4 chapters you get, okay, that is you have debt, you have shares, you have vertical statements, and you have theory part, computerized accounting. So theory part I would advise not to attempt, keep it as a last resort. अगर बहुत difficult लग रहा है कुछ तो theory attempt करना. Because the problem with theory is you don't get full marks. Theory you won't be able to get full marks. इतना भी अच्छा आंसर लिखो आप, economics OC, you know that. Never get full marks in theory. तो theory आपको attempt नहीं करना है, पढ़ना है, but keep it as a last resort. कुछ बहुत difficult लगे, कुछ attempt ही नहीं हो पा रहा है, तब जाके attempt करना है. And shares questions are not difficult at all. We'll be doing the board papers also. 7-8 board papers will be solving. So उसमें भी आपको पता चलेगा कि it's not at all difficult, the questions which they ask in boards. Okay, so prepare these 2 topics out of the 4. 4 topics are death, shares, vertical statements and theory. उसमें से death और shares perfectly करना है. Vertical statements भी will be doing with the revision part, but again just like theory, keep it as an option because again there you have ratio analysis and also maths के जैसा है तो थोड़ा calculation error होने का chance है. We'll be doing that also, get the knack of it. That's also a good topic, ratio analysis, company accounts में काम आता है. Okay, तो फिलहाल शेयर्स के साथ जाते हैं. शेयर्स पे कोई लूपहोल मत रखना, परफेक्टली प्रिपेयर करना. Okay, सर कितने मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में? earlier it was 10 marks. Even now I think they have kept 10 marks. That marking pattern they gave you just now, yeah, I think it is 10 marks, 15 marks of, or they have made final accounts and NPO, I think 12, objectives 20, so that makes it 34. Just tell you, wait a second. Earlier it was 10 marks, now I think they have made it 8 marks. Yeah, shayad they have kept it at 10 marks. Just a second. See, your objectives earlier were 15 marks. 15 marks के लिए 5 आता था. Now they have made it 4 marks का 5. के पहले तो टाइम कम कर दिया, 2 hours, नहीं टाइम कम नहीं किया, सॉरी टाइम 3 hours दिया तुम्हारा. ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारा 15 marks का आता था. 3 questions you are supposed to attempt, 3 questions you are supposed to attempt for 15 marks. Now they have made it 20 marks. 20 marks का objectives हो गया तुम्हारा. Then admission and retirement में एक option है, dissolution and BOE में एक option है, that is 10 marks. And
both are 10 marks, admission या retirement, BOE या dissolution. And yeah, as I told you, death and shares, death and vertical statements and shares and theory, they have made it 8 marks. Well, it was 10 marks, now it is 8 marks. And final accounts also they have reduced from 15, they have made it 12. NPO, they have kept it at 12. So now NPO and final accounts have equal weightage of 12. So NPO final accounts 12, 12 each, baki sub 10, and shares and debt will be for 8 marks instead of 10 marks. But that doesn't make much of a difference in the type of question. Okay, वो marks का weightage change हो जाएगा खाली. Question का length उतना ही रहने वाला है. Time duration 3 hours है तुम्हारा. Question length is going to be the same. खाली marks का distribution ऊपर नीचे किया हुआ है. Okay. So let's begin with issue of shares now. Bolo, shares. Any idea about this topic? What do you mean by shares? Anyone? Part of the company. Part of the company. बराबर है. और कुछ? You can elaborate. Raising funds. Raising funds. Yes. Who can raise funds via shares? Company. Companies. Companies. Can any other form of organization raise money via shares? No. Like sole proprietary, partnership, NPO? No. No. None. Okay, only a joint stock company. That's a public limited company. Okay, they can raise the money by issuing shares to the public. What is that called as? It's called an IPO. You know what is the full form of IPO? IPO का full form? Initial public offering. Initial public offering. Okay, IPO stands for initial public offering. So what happens in initial public offering? The company who wants to issue the shares offers it to the public, and people buy those shares, give the money to the company, and with that money it runs the business. Okay, and जो भी profits कमाती है वो भी जिसने पैसा डाला उसको return भी मिलना चाहिए. So what return will the company give to that shareholder? What is that called as? Dividend. Dividend. What is dividend? A share of profits of the company. कंपनी ने जो भी प्रॉफिट्स कमाया उसका थोड़ा सा हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. दैट्स हाउ अ सिंपल मैकेनिज्म ऑफ अ कंपनी वर्क्स. नाउ व्हाई देयर इज अ नीड टू फॉर्म कंपनी? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी? कंपनी बनाने का रीजन क्या है? प्रॉफिट. प्रॉफिट तो सोल प्रोप्राइटरी में भी कर सकते हो, पार्टनरशिप में भी कर सकते हो. सर एक्सपेंशन कर लिया. एक्सपेंशन, मोर मनी, मोर कैपिटल. ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट. ये सब अलग अलग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्यों आए पिक्चर में? मेनली बिकॉज ऑफ नीड ऑफ मनी, पैसे की जरूरत से. सोल प्रोप्राइटरी में एक लिमिट आ जाती है कैपिटल की, है ना. जब 2, 3, 4, 10 लोग पार्टनरशिप बनाते हैं तब 2, 4, 10 लोग पैसा लाएंगे बिजनेस में, तो ज्यादा बड़े लेवल पे आप बिजनेस कर सकोगे. तो बड़े लेवल पे करोगे, कंपटीशन को भी फेस कर सकते हो, प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एडवांटेज होते हैं. डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको गुड्स मिल सकते हैं, बल्क में खरीद रहे हो आप, बल्क में बेच रहे हो. ओके, तो वैसे ही कंपनी फॉर्म इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड. ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब आया एग्जिस्टेंस में, तुमको पता है? When did this company form of organization come in the existence? 2013. वो तो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 रिवाइज्ड है. पहला 1956 था, 2013 में रिवाइज किया हुआ है. वो तो एक्ट है, उसका लॉ है. लॉ जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, नेगोशिएबल 1881 है, वैसे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 को रिवाइज किया, अपडेट किया गया है 2013. ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब बना, कब स्टार्ट हुआ? जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करने की कब शुरू हुई, कब लोग कंपनी बनाना शुरू किए? So this started after your industrial revolution. Okay, you know what is industrial revolution, right? स्कूल में रहेगा तो. इंग्लैंड में हुआ था 1600, 1700, 1500 समथिंग, 1500-1600 AD में, अभी 400 साल पहले.
तो तब जाके वो स्टीम इंजन वगैरह सब डेवलप हुआ एंड मशीन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ. तो मशीन प्रोडक्शन वाज नॉट देयर बिफोर दैट. तो लोग क्या है छोटे छोटे लेवल पे अपना अपना बिजनेस करके कमा लेते थे पैसे. मशीन प्रोडक्शन से क्या हुआ, फैक्ट्रीज बनने लगी और मशीन की जरूरत पड़ने लगी. तो machines are very costly, right? Machines are very costly. Huge machines for huge production. Obviously, they have big advantage. अब number of units 100 लोगों का काम एक मशीन कर लेती है, but they are costly as well. तो उधर कैपिटल की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ने लगी. तो लोगों ने क्या सोचा कि हम तो यार पार्टनर्स हैं, 8, 10, 15 लोग, कितना पैसा इकट्ठा करेंगे. तो लेट्स रेज द मनी फ्रॉम पब्लिक. पब्लिक से पैसा रेज करते हैं तो ज्यादा पैसा आएगा, बड़े लेवल पे कैपिटल मिल जाएगा, हम लोग काम कर सकेंगे मशीन से. So mainly after industrial revolution ये joint stock company का concept picture में आया, some 300-400 years ago. So वहां से ये joint stock company शुरू हुई है and there are two types of companies, you don't know, private limited and public limited. Have you done in OC? Private limited and public limited company? Yes, sir. What is the difference between the two? Private limited and public limited company में फर्क क्या है main? See, in a private limited company, दोनों कंपनीज है, ओके, दोनों को रजिस्टर करवाना पड़ता है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर सेक्शन होती है, ओके. देयर आर मिनिमम ऑफ 2 members, मैक्सिमम ऑफ 200. अर्लियर इट वाज 50, नाउ दे हैव मेड इट टू 200 as per companies updated revised edition 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के बाद ये हो चुका है आपका 200 members. एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 members होते हैं, ओके, एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड, अपर लिमिट कोई है ही नहीं. तो प्राइवेट लिमिटेड कैसा होता है, पब्लिक से छोटा होता है और छोटे लेवल पे आपको बिजनेस करना है, छोटा कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो प्राइवेट लिमिटेड. पब्लिक लिमिटेड में आप पब्लिक से रेस कर सकते हो पैसा, आईपीओ लाके पब्लिक से पैसा रेस कर सकते हो. ये एडवांटेज खाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी को होता है. तो अगर आप ऑल इन ऑल पिक्चर देखो ब्रॉडर सेंस में, तो छोटे से छोटा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोल प्रोप्राइटर, उससे बड़ा होता है पार्टनरशिप, उससे और बड़ा होता है प्राइवेट लिमिटेड, और सबसे बड़ा होता है पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एज पर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो जितना आप एक्सपैंड करते जाओगे, बड़ा बड़ा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लिमिट है पब्लिक लिमिटेड. उधर फिर कोई अपर लिमिट है ही नहीं, जितने मेंबर बनाने हैं, जितने शेयर होल्डर बनाने हैं, पब्लिक से पैसा रेस करो, इंस्टीट्यूशन से रेस करो, बैंक से रेस करो, ओके, बड़े कैपिटल पे आप काम कर सकते हो. सो क्लियर विद दीस पार्ट्स, बेसिक थिंग्स अबाउट अ कंपनी, अ प्राइवेट लिमिटेड एंड अ पब्लिक लिमिटेड. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कंपनी फॉर्म करने का? व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन अ कंपनी? ओनर की लायबिलिटी क्या हो जाती है? Unlimited. ना, Limited. in a sole proprietary and in a partnership firm, the liability is unlimited. You know what is unlimited liability? Unlimited liability मतलब property can be attached to pay the business dues. आपको external liability, creditors, loans वगैरह चुकाने के लिए personal properties attach करनी पड़ेंगी in case of sole proprietary and partnership firms. But in case of companies, the liability is limited. लिमिटेड का मतलब क्या है? अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, तो आई एम एक्चुअली अ पार्ट ओनर ऑफ रिलायंस. मैंने उसको जितना पैसा दिया है, उस अमाउंट का मैं ओन करता हूं. रिलायंस शेयर होल्डर आर द ओनर, दे आर द कैपिटल मनी गिवर्स. लेकिन मेरा लायबिलिटी इज लिमिटेड टू माय कैपिटल कंट्रीब्यूशन. मतलब आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन रिलायंस का शेयर्स खरीदा है, सॉरी, तो मेरा लायबिलिटी इज लिमिटेड टू दैट 1 लाख रुपीज. मेरा पैसा डूबेगा तो मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपीज डूबेगा. वो कंपनी ने और लॉस कर दिया और कुछ बड़े से स्कैम हो गए, वो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी कभी अटैच होने वाला नहीं है कंपनी में. इज इट क्लियर? तो जब भी आप कंपनी बना दे, एंड दैट गोज फॉर ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन द कंपनी इंक्लूडिंग द प्रमोटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बेसिक ओनर्स थे कंपनी के पहले प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में, सब लोग जितना पैसा उन्होंने कंपनी में डाला है उतना ही पैसा उनकी लायबिलिटी है. उससे ज्यादा 1 रुपया भी आपका पर्सनल प्रॉपर्टी कभी अटैच होने वाला नहीं है. ओके, भले ही कर्जा हो गया, भले ही लॉसेस हो गए, ओके, हाँ, लेकिन एक चीज अभी श्योर हो चुकी है, सेबी ने भी डिक्लेयर कर लिया है
कि आप अगर फ्रॉड्यूलेंट तरीके से कंपनी फॉर्म करते हो तो चीट योर लोन गिवर्स, आपके लोन गिवर्स को आप चीट करने के लिए फ्रॉड्यूलेंट तरीके से कंपनी फॉर्म करते हो कि आप उसका पैसा लेके हड़प लोगे और बोलोगे कि मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं करना है क्योंकि ये तो कंपनी है। अगर फ्रॉड या चीटिंग का केस आया तो फिर तो सवाल ही नहीं है, तो पर्सनल प्रॉपर्टीज भी लिक्विडेट करके आपसे पैसा वसूल लिया जाएगा ऑन पर्पस। अगर आप कुछ कर रहे हो चीटिंग तो फिर वो पर्सनल, वो लिमिटेड लायबिलिटी सब गुल, और तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी विल बी अटैच टू पे ऑफ द बिजनेस। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। बट जेन्युइनली लॉसेस हो गए बिजनेस में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा आपने जितना डाला है बिजनेस में उतना ही डूबेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ये एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। आपने उसी में पढ़ा होगा, अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब, आप जब रजिस्टर करवाते हो कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक सिटी में, स्टेट्स में, आप उसको रजिस्टर करवाओ एक फीस भर के नॉमिनल, और जैसे आप रजिस्टर करवाओगे वो एक कंपनी वर्चुअल एंटिटी गेन कर लेती है। So company is a separate entity, different from its members. ओनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, मैनेजर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, ओनर्स चेंज होते रहेंगे, शेयर होल्डर्स चेंज होते रहेंगे, कंपनी वैसे की वैसी रहेगी। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आर यू गेटिंग इट? तो मेंबर्स को कुछ भी हो जाए, चेंज हो जाए, खत्म हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है, नए मेंबर्स आ जाए, कंपनी अलग से अपना काम कर रही है। तो कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। दैट्स व्हाई इट हैज गॉट परपेचुअल एग्जिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट हैज गॉट डिफरेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, दैट्स व्हाई द लायबिलिटी इज आल्सो लिमिटेड। तो जो पैसा कंट्रीब्यूट किया उतना ही आपका लायबिलिटी है, बाकी जो लोन वगैरह लिया है, सपोज आप नहीं चुका पाए, पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इज क्लियर? सर यस। सर अभी मतलब अगर हम लोग पहले कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी तो फिर उसको पब्लिक करना है तो उसके लिए कुछ मतलब एक बार रजिस्टर हो तो दूसरी बार पब्लिक नहीं पब्लिक हो लिमिटेड सकती? का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यस। मतलब एक बार प्राइवेट है और समझो बाद में पब्लिक करना है तो उसके लिए हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है फिर? हो सकता है ना, प्राइवेट लिमिटेड काफी कंपनीज पब्लिक होती है ना, तो अच्छा। रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो फाइल करवाने पड़ते हैं विद द रजिस्ट्रार एज वेल एज विद द सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज, और फिर आपको परमिशन मिल जाएगी टू गिव एन आईपीओ। सेबी से आपको परमिशन लेनी है, उसको सब डिटेल्स देके, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वगैरह, अपनी कंपनी की डिटेल्स देके कि भैया ये बिजनेस है, हम लोग इतने सालों से ये लाइन में एक्टिविटीज कर रहे हैं और हमें अभी पब्लिक से पैसा रेज करना है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, तो प्लीज गिव द परमिशन। वो परमिशन मिलने के बाद यू कैन रेज द मनी फ्रॉम द पीपल। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए यू हैव टू मेक अ रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ओके। अबाउ सर्टन लिमिट, सर्टन टर्नओवर लिमिट्स आर गिवन इन द एक्ट, उसके ऊपर अगर चला गया तो आप डीम्ड पब्लिक भी कहते हो, तो उस कंपनी को डीम्ड पब्लिक कहा जाता है। तो एक लिमिट होती है, अब लिमिट्स एग्जैक्टली आई डोंट नो, दे कीप ऑन चेंजिंग ओवर द इयर्स। तो एक लिमिट होती है 5 करोड़ समथिंग, इट इज 5 करोड़ और 1 करोड़ रुपीस। उसके ऊपर अगर आपका सेल्स टर्नओवर चला जाए तो आप डीम्ड पब्लिक कहलाते हो। डीम्ड पब्लिक मतलब आप पब्लिकली रजिस्टर नहीं करवाओगे तो भी आपको पब्लिक लिमिटेड के लॉज अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मेन लफड़ा क्या होता है, प्राइवेट में पब्लिक मतलब प्राइवेट कंपनी क्यों बना के रखते हैं और पब्लिक लिमिटेड क्यों नहीं बनाते हैं? मेन रीजन ये होता है कि व्हेन यू आर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो आपको सेबी वगैरह के और स्टॉक एक्सचेंज के ये सब इंटरफियरेंसेस नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के लॉ के, सेबी के इंटरफियरेंसेस नहीं होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो आप अपना अपना बिजनेस चुपचाप कर सकते हो विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। मच ऑफ गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा बहुत वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप अपना अपना बिजनेस करो, तो बाहर कुछ ज्यादा पब्लिश करने की जरूरत नहीं है क्या चालू है बिजनेस में। बट एक बार आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गए तो सेबी एज वेल एज कंपनीज एक्ट एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंजेस एज वेल एज गवर्नमेंट, ये सब आपको लाइमलाइट में लेके आएंगे। एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वेदर यू आर सीइंग ऑल दीज, पट्टी पे दिखता रहेगा आपको, सीएनबीसी पे जो पट्टी घूमते रहता है ना, रिलायंस है, विप्रो है, टीसीएस है, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक,
All these are publicly listed companies. So these companies have many regulations to follow. Regulations in the sense, कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, से बोर्ड मीटिंग में या जनरल डिस्कशंस में, वो आपको बाहर पब्लिश करके सेबी के साइट पे अपलोड करके दिखाना पड़ता है. न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट डिसीजन पब्लिश करने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि यू आर आंसरेबल टू एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. आपके साथ बहुत लोग लिंक्ड है ना. अभी आपने पब्लिक से पैसा रेज किया हुआ है, तो शेयर होल्डर्स, बैंक्स, इन्वेस्टर्स सब लिंक्ड है. तो डगले न पगले, every step, मतलब every week, every month, there are many things that are needed to be filed by the companies with the SEBI and in the public domain. वो public domain में होना चाहिए, कंपनी के वेबसाइट पे होना चाहिए, तो बाकी इन्वेस्टर शेयर होल्डर को पता चले कि क्या हो रहा है कंपनी. ओके, तो ये बहुत रिक्वायरमेंट बहुत हो जाती हैं फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. बट नॉनदलेस द एडवांटेजेस आर आल्सो बिग बिकॉज यू आर गेटिंग बिग मनीज. बड़े पैसे आ रहे हैं, बड़े लेवल पे आप एक्टिविटीज कर रहे हो, बड़े लेवल पे प्रॉफिट्स कमा रहे हो. गॉट इट? सो दैट इज द एडवांटेज एज वेल एज अ वीक पॉइंट, अ नेगेटिव पॉइंट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. रिसेंटली इन द ईयर 2013 ये जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप बिजनेस है ना, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. तो ये लोग क्या है, ज्यादा रिस्क नहीं लेते थे. कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो आप ज्यादा रिस्क लोगे तो पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, तो आप ज्यादा रिस्क नहीं लोगे, कंजर्वेटिव तरीके से बिजनेस करोगे. तो इसको भी ओवरकम करने के लिए दो नए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आए हैं. इन द ईयर 2013 they have launched one person company form of organization. मतलब single person, he can also form a company, he can register it, 100% शेयर होल्डिंग उसके पास होगी. बिजनेस वो सोल प्रोप्राइटरी तरीके से करेगा, लेकिन लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी. अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी. जितना पैसा आपने बिजनेस में डाला है उतना ही जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगा. तो वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आया हुआ है 2013 में, एज वेल एज इन द ईयर 2008 पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी ओवरकम करने के लिए एलएलपी एक्ट आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. आपने देखा होगा कोई कोई फॉरेन कंपनीज के बाजू में एलएलपी आईएनसी ऐसा लिखा होता है. सो एलएलपी एक्ट इंडिया में लॉन्च हुआ है 2008 में. ये क्या करता है, आपको पार्टनरशिप फॉर्म भी लिमिटेड लायबिलिटी से फॉर्म करने के लिए अलाउ करता है. तो यहाँ पे आपका पार्टनरशिप फॉर्म है बट लायबिलिटी लिमिटेड. तो आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी की झंझट नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी की झंझट नहीं है, रिस्क आप ले सकते हो, बिजनेस आप अच्छे से कर सकते हो. इसके लिए ये दो, हाँ फ्रॉडुलेंट तरीके से कुछ भी किया तो सब अटैच हो जाएगा. ओके, एट प्रेजेंट आल्सो यू माइट हैव सीन विजय मल्ल्या एंड ऑल, दे हैव फ्लेड द कंट्री. लंदन भाग गया है, उसका 10,000 करोड़ का लॉस, कर्जा हो गया है बैंक्स का किंगफिशर एयरलाइंस पे, एंड विलफुल उसने डिफॉल्ट किया हुआ है. विलफुल डिफॉल्ट मतलब जानबूझ के कर सकता था फिर भी नहीं कर रहा है, भाग गया है, तो उसका अभी प्रॉपर्टीज अटैच करने का चालू किया है. जो भी ऑफिसेस हैं, बंगले हैं, दे आर अटैचिंग एंड दे आर लिक्विडेटिंग इट. सो ऐसे केस में अगर आप करते हो, विलफुली करते हो, फिर कोई छुटकारा नहीं है. ओके, बट अदरवाइज अगर आप सिंसियरली बिजनेस करते हो तो दीज आर द बेटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली अवेलेबल. One person company, LLP, limited liability partnership instead of unlimited. Then you have limited partnership, private limited, public limited company. Okay, depending on the requirement. अब कंपनी हवा में से तो फॉर्म नहीं होती है, ठीक है. कंपनी फॉर्म कभी भी ऐसा डायरेक्टली पब्लिक लिमिटेड में जंप मार के कभी नहीं होने वाला. कोई भी जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आपको दिख रही हैं इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, दे हैव स्टार्टेड समवेयर, either in the form of sole proprietary or in the form of a partnership or in the form of a private limited company. जंप मार के सीधा पब्लिक लिमिटेड इश्यू करने जाओगे, एक ठेला भी नहीं मिलने वाला है आपको आईपीओ में. ओके, जब कंपनी आईपीओ लाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाता है, शेयर्स इश्यू करता है पब्लिक में से, तब वो एक चीज इश्यू करता है, शेयर होल्डर को एक मैनिफेस्टो देता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस. माइट हैव हर्ड अबाउट इट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सुना है. प्रोस्पेक्टस वो देता है पब्लिक को, सबको प्रोस्पेक्टस देता है. वो प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है, कंपनी का सब पॉजिटिव पॉइंट्स लिखा होता है कि कंपनी इतने सालों से बिजनेस कर रहा है, आइदर पार्टनरशिप में या प्राइवेट लिमिटेड में, इतने सालों से ये धंधा कर रहा है, इतने एक्टिविटीज चल रहे हैं,
इतना प्रॉफिट्स हुआ है, 10 साल का 5 साल का टर्नओवर दिखाएगा, 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएगा, दूसरे लोन्स वगैरह दिखाएगा, बोरोइंग्स तो नहीं है कंपनी पे, कैसा एरिया में एक्सपैंड किया है, कौन से एरिया से कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये सब डिटेल्स आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दी जाती है और फिर वो सब पढ़ के पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है। तो कभी ऐसा नोशन मत रखना कि सीधा पब्लिक लिमिटेड फॉर्म कर सकते हो, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। द बिजनेस स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोज बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ मनी। सोल से पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से जनरली प्राइवेट, या फिर पार्टनरशिप से डायरेक्टली पब्लिक लिमिटेड, आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है पैसे की। ओके, अदरवाइज इट इज मोस्टली प्राइवेट, पार्टनरशिप टू प्राइवेट लिमिटेड एंड देन टू पब्लिक लिमिटेड। इज दिस पार्ट क्लियर? यहां तक समझ आ रहा है सबको? बेसिक्स था ये, एकदम बैकग्राउंड था आपका, कंपनीज क्या होती हैं उसका। सर यस सर अगर समझो अभी वो आपने बोला कि फ्रॉडुलेंट तरीके से मतलब वो लोन्स लेते हैं और बाद में निकल जाते हैं, तो सर अभी सर आपने बोला अभी ये विजय माल्या और उसका एग्जांपल दिया, तो सर अभी समझो उसका समझो पर्सनल प्रॉपर्टी और सब मिला के भी कुछ उतना नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे वो? फिर खत्म, हमने किया है ना डिसोल्यूशन, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, डेफिशिएंसी। अच्छा ऐसा ही होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अभी इसके लिए बनाया है मोदी गवर्नमेंट लास्ट 2 years अगो। इसमें 12 कंपनीज को जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके लिक्विडेशन प्रोसेसेस जो चालू है, कभी भी कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है या इंसॉल्वेंट हो रही है, आपने डिसोल्यूशन सीखा है अभी अभी, क्या होता है डिसोल्यूशन में, याद है आपको? आप लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हो, एसेट्स रियलाइज करते हो, राइट? फिर ऑल पार्टनर सीखा हमने, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। वहां पे क्या हुआ था, सब पार्टनर कंगाल हो चुके थे, राइट? तो एसेट्स बेच के पूरे पैसे नहीं आ रहे थे, इसलिए आपको चॉइस करनी पड़ी लाइबिलिटीज के पे ऑफ करने के लिए, याद है ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटी। तो कंपनीज भी वही करती है। कंपनीज भी जब बैंकरप्ट हो जाती हैं, जब उनकी लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं, एसेट्स कम हो जाते हैं, तब लिक्विडेट करके ये ऑर्डर फॉलो करती है। सबसे पहला लिक्विडेटर का पैसा चुकाती है, फिर सिक्योर्ड लाइबिलिटी चुकाती है, फिर अनसिक्योर्ड, फिर कुछ बचा तो शेयर होल्डर को जाता है। ओके, बट कंपनीज में प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली आपके जो लोन गिवर हैं, जो अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड लाइबिलिटी है, उनको ही आप पूरी तरीके से नहीं चुका पाओगे। दे विल गेट एटलीस्ट 40-60% हेयर कट। 40-50-60% हेयर कट का मतलब, अगर किसी ने अभी फॉर एग्जांपल किंगफिशर को 5,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, तो उसको मर के 2,000 करोड़ रुपया मिलेगा लिक्विडेशन में। 3,000 करोड़ रुपया गया पानी, शेयर होल्डर तक तो पहुंचेगा ही नहीं पैसा रिटर्न करने के लिए, जो शेयर कैपिटल उन्होंने डाला था कंपनी में। तो लिक्विडेशन के वक्त कभी भी कोई लॉस मेकिंग कंपनी होती है, तब बहुत ही खराब हालत हो जाती है। बैंकर्स को आधे पैसे मिलते हैं, માંડ आधे पैसे, शेयर होल्डर तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं है। एंड इट्स अ फैक्ट, वो होता ही है हर एक कंपनी में। जो बुरा परफॉर्म करती है लिक्विडेशन के प्रोसेस में चली जाती है। ओके, अब जाने वाली है, अभी रिलायंस वाली सब कंपनी आधी हो चुकी है, आधी जाने वाली। नॉट द मुकेश अंबानी वन, द अनिल अंबानी वन। अनिल अंबानी, यू नो ना द ट्रेजेडी, बेचारा बोलता है मैं एक गाड़ी लेके घूम रहा हूँ। Okay, he sold his jewelries to pay off loan. Sold his jewelry to pay off loan. Okay, Anil Ambani is an apt case study if you want to study. इंटरनेट पे जाके सर्च करना, भाई का नेटवर्थ कुछ 12 या 14 बिलियन डॉलर्स था। सॉरी सर वर्ल्ड का 6th richest था। हाँ, 14 बिलियन डॉलर, बिलियन, 14 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन। 14 बिलियन डॉलर इज लाइक 1,20,000 crores. ओके, इतना नेटवर्थ, 1,10,000 करोड़ का नेटवर्थ था उसका। वहां से जाके भाई कहाँ टपका है अभी, ऑलमोस्ट जीरो नेटवर्थ। सर इसका एक रीजन ये भी सर कि फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाया रहेगा, इसलिए शायद देखो फ्यूचर सबके लिए सेम है, राइट? ऑल आर डूइंग बिजनेस। उसका भाई भी बिजनेस कर रहा था मुकेश, वो भी बोल सकता था मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। Future is same for all of us. Future is uncertain, right? But when you have that basic understanding of a business, आप unknown ventures में पैर नहीं डाल रहे हो, आप सीख के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के जा रहे हो, कंजर्वेटिव होके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ग्रो करोगे, लेकिन प्रॉफिट्स तो कमा लोगे, एटलीस्ट ब्रेक इवन कर।
आप आड़े धड़ नए नए वेंचर्स में जहां मन चाहा, कल किसी ने बोला बिटकॉइन में अच्छा चल रहा है, डाल दिया बिटकॉइन में पैसा, कल कोई बोल रहा है कि ये .com अच्छा चल रहा है, डाल दिया उसमें पैसा, बिना सोचे समझे नए वेंचर्स में ऐसे ही आलतू फालतू डाल रहे हो, तो फिर तो जाने ही वाला है पैसा। एंड मेन प्रॉब्लम अनिल अंबानी ग्रुप का यही हुआ, he was not keen in management, he was not as sharp as मुकेश, उसका जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स था वो सब हैंड ओवर कर देता था अपने सबऑर्डिनेट्स को, खुद का कंट्रोल उसका इतना नहीं था अनिल का, that was a major problem and he became लेगार्ड थोड़ा, इंडस्ट्री को अपडेट रहने में वो पीछे रह गया। अपडेट रहना बहुत जरूरी है, यू रिमेन एज अपडेटेड एज पॉसिबल, एनहांस न्यू। इसका भाई तो और आगे है इसके एक स्टेप, 3G चालू है 4G लेके आया, 4G चालू है 5G रेडी है उसके पास। तो एज एंड व्हेन यू आर अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी, विद द सराउंडिंग चेंजिंग वर्ल्ड, यू विल बी सक्सेसफुल इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। बट आप लेगार्ड रह जाओगे, अपडेट ही नहीं करोगे खुद को, वही स्टैग्नेंट रह जाओगे। तो किंगफिशर क्यों डूबा, किंगफिशर का अलग स्टोरी है। किंगफिशर जिस रीजन से डूबा, दैट इज द रीजन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस डूबने का। मेजॉरिटी 90% ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू दिस रीजन, जिस रीजन से किंगफिशर डूबा। किंगफिशर के सीन में क्या हुआ था, 2005-6 में कभी वो लॉन्च हुआ था एयरलाइंस, और बहुत अच्छा चला, किंगफिशर का ब्रांड नेम बन गया था। इट वाज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एंड वेल यूटिलाइज्ड एयरलाइन, पब्लिक जाता था उसमें, एकदम इलाइट स्टेटस सिंबल बना के रखा था उसने। 16-17 हजार रुपए हाई एंड पे टिकट्स थी उसकी। एयर इंडिया, किंगफिशर और थोड़े बहुत जेट के एयरवेज, ये इनकी टिकट सबसे हाई प्राइस पे बिकती थी और पब्लिक लेता भी था। फैसिलिटीज इतनी देता था, इन फ्लाइट फूड वगैरह, एरोस्टेस एकदम हीरोइन जैसा लेके रखा था, हेडफोन सब फ्री में देता था, फ्लाइट इन फ्लाइट हेडफोन्स एंड ऑल। सो ऐसा सब उसने करके रखा था बना के बिजनेस मॉडल। फिर क्या हुआ, उसको मन हुआ कि जेट लाइट करके तभी एक लॉन्च हुआ था एयरलाइन, जेट लाइट। जेट का हाई प्राइस था एक एयरलाइन और एक लो कॉस्ट एयरलाइन था जेट लाइट। तो जेट हाई प्राइस वाला अलग था, प्रीमियम एयरलाइन था, और लो कॉस्ट वाला जैसा भी गो एयर, इंडिगो चल रहा है, सस्ता टिकट, उसमें कुछ फैसिलिटी नहीं रहता है, खाना भी नहीं देता है, खाली आप जाओ ट्रैवल करो, 2000-1500 रुपए में ट्रैवल करो। ऐसा जेट लाइट चालू हुआ। तो किंगफिशर को क्या लगा कि साला अपने को भी सस्ता वाला एयरलाइन लॉन्च करना चाहिए, ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए। वो अपना प्रीमियम लाइन छोड़ के नए लाइन में फोकट का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, एयर फ्लाइट्स खरीद ली, फ्लीट्स ऑफ एयरप्लेन खरीद लिए और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब नाम बना हुआ था प्रीमियम ब्रांड, किंगफिशर वाज लाइक प्रीमियम एयरलाइन, और उसने क्या किया, ये सस्ते वाले को अट्रैक्ट करने के लिए वो सस्ता भी नहीं बन पाया और महंगा भी नहीं रह पाया, बीच का हो गया। मतलब उसका टिकट प्राइस थोड़ा ज्यादा रह गया कंपेयर टू या सस्ता कॉम्पिटिटर, और वो प्रीमियम का स्टेटस से नीचे आ गया। तो पब्लिक क्या है अभी, वो ना ऊपर का ना नीचे का, इधर का ना उधर का, तो उसका इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, पब्लिक का ट्रैवलिंग इतना उसको मिला नहीं, और इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी कर लिया था, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए थे उसके। तो ये रीजन से धीरे 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 और फिर नए 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 कॉम्पिटिटर आते लगे, 9, 10, 11 से इंडिगो, ये गो एयर और ये स्पाइस जेट और ये लो कॉस्ट एयरलाइन की फ्लीट आ गई, पूरी एक जंग, पूरी एकदम एक साथ झुंड आ गया। तो इसके बाद इसका सब फॉल चालू हुआ फ्रॉम द ईयर 7, 8, 9 एंड ऑल, और 11, 12 तक तो खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट। सो ये रीजन मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस को खा जाता है। व्हाट इज दिस रीजन? जब बिजनेस अच्छा कर रहा होता है, when the business is doing good, the management feels over enthusiastic, over optimistic, and in that over optimism it invests in huge amounts in different places, और बड़ा करो, और बड़ा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़े जूते में पैर डालना, इसको बोलते हैं बड़े जूते में पैर डालना, तुमको फिट नहीं हो रहा है, बिना रिसर्च, बिना ड्यू डिलिजेंस, बिना एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच लिए लैविश हो जाओ। उनको क्या लगता है ये बिजनेस चल गया है वो भी चलेगा, सब चलेगा। ऐसा तुम इडली का एक शॉप खोला, घाटकोपर में चल गया, सबको पसंद आया, तुम क्या सोचेगा, अरे ये तो मेरा फेमस रेसिपी है, सबको पसंद आ रहा है, चलो एक्सपैंड करते हैं। तुमने क्या किया, एक्चुअली तुमको करना क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक ब्रांड बनाया, 2-3 साल बाद दूसरा बनाया, 2-3 साल बाद तीसरा बनाया, सबको ग्रो करना है, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट्स करना है। तुमने एक ब्रांड के बाद सीधा 5 ब्रांड बना दिया और फिर पैन इंडिया 100 ब्रांड बना दिया,
इतना खर्चा कर डाला, इज इट गोइंग टू रन द सेम वे? डू यू हैव कि सबका टेस्ट सेम है, सबको सेम ही इडली पसंद आएगा, ऐसा सब सोचे बिना इतना खर्चा कर दिया तो बिजनेस डूबने ही वाला है. सेम थिंग हैपेंस विद मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस. ओके, expansion without any due diligence, just because your business is growing, brand name is growing, doesn't make any sense. Okay, so ये फंडा होता है और ये हुआ था किंगफिशर में. दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ इट्स डाउनफॉल. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द चैप्टर. अपने को क्या करने का है, ठीक है सर. See, अभी कंपनी फॉर्म कैसे? सर एक डाउट था सर, ये जो अभी गवर्नमेंट में आया है कि वो जो 12 गवर्नमेंट कंपनीज है वो लोग बंद कर रहे हैं, मतलब तो सर वो किस रीजन के लिए रहेगा? मतलब प्रॉफिट इनफ नहीं है उसको या बोलते हैं फिर? डिसइन्वेस्टमेंट. अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट जो ओन करती है ना, जिसमें 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का होता है. एक्चुअली गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना होता ही नहीं है. गवर्नमेंट का काम इस बिजनेस करना है ही नहीं. गवर्नमेंट का काम क्या है? डिफेंस, होम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड योर डैम्स और रेलवे कैनाल, रिवर कैनाल्स, ये सब बनाना काम होता है गवर्नमेंट का, और कुछ नहीं होता. रोड्स बनाने का यही सब होता है. बिजनेस गवर्नमेंट को कभी जिंदगी में ना करना आया था, ना आया है, ना आएगा. MTNL भी बर्बाद हो चुका है, BSNL भी बर्बाद हो चुका है. ये कोल इंडिया भी ऐसे ही है, अभी प्राइवेटाइज कर रहा है उसको, थोड़ा थोड़ा चल रहा है अभी क्योंकि मोनोपोली है. बाकी गवर्नमेंट कभी लाइफ में काम करनी, क्योंकि वो मैनेजमेंट थोड़ी है, वो MBA प्रोफेशनल और वो लोग थोड़ी मैनेज कर रहा है उसको. ऐसा वो तो कोई गवर्नमेंट कोटा से आया हुआ बंदा है, बैठा हुआ है उधर. SBI लंच पे चला जाता है 1:30-2 बजे, प्राइवेट बैंक आके खा जाता है उसका शेयर फिर. सो गवर्नमेंट होल्डिंग अ गवर्नमेंट कंपनी वो इंडिया में चल रहा है क्योंकि इंडिया में पब्लिक क्या है? गरीब बहुत है. तो गरीब लोगों को सर्विस मिलना चाहिए, इसके लिए दिस पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनीज आर देयर टू प्रोवाइड चीप सर्विसेज टू द मास पॉपुलेशन. ओके, अदरवाइज अभी गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो रहा है कि हमसे अच्छा प्राइवेट कर रहा है, तो वो पैसे रेस कर रहा है, अपने शेयर्स बेच के गवर्नमेंट कंपनी से पैसे रेस कर रहा है. गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग मनी, जैसे टैक्स से कलेक्ट करता है वैसे कंपनी का शेयर्स बेच के रेस कर रहा है. उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. धीरे धीरे LIC को भी डिसइन्वेस्ट करेगा, पब्लिक HPCL, BPCL, DOC, सबका डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस अभी चालू है थोड़ा थोड़ा. एयर इंडिया एप्ट एग्जांपल, एयरलाइन. ओके, एयर इंडिया का तो मस्त स्टोरी एक्चुअली. एयर इंडिया बेचारा एक्चुअली वो टाटा का एयरलाइंस. ओके, इफ सम ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट इट, एयर इंडिया was Tata Airlines actually in the year what 30-40 years 40-50 years ago. तो टाटा वाले का प्राइवेट एयरलाइन था, बेचारे ने फर्स्ट एयरलाइन लॉन्च किया था इंडिया में, मस्त चल रहा था. इंदिरा गांधी आई, बोली नेशनलाइज कर देने का. बोलो नेशनलाइज करो मतलब क्या है? गवर्नमेंट बना दो उसको. उसको झक मार के बेचना पड़ा अपना स्टेक गवर्नमेंट को, और वो पब्लिक हो गई. एयर इंडिया पब्लिक कंपनी, नॉट पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हो गई एयर इंडिया. और फिर इंडिया का जो बैंड बजाया गवर्नमेंट ने 20-30 साल में, अभी 10-12 हजार करोड़ का ऊपर लोन्स हो गया है. मोर देन आई थिंक 20-25,000 करोड़, 40,000 इज द फिगर, सॉरी 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ का लोन सब हो गया ऑन एयर इंडिया एंड ऑल. अभी बायर्स ढूंढ रही है, अभी बोल रही है कि खरीदो. अभी प्राइवेट वाले को बोल रही है कि प्लीज हमसे खरीदो. पहले खुद ने खरीद लिया प्राइवेट वाले से, फिर चला नहीं, सर्विस देने के लिए लाई थी बट हुआ नहीं, कल्याण कर दिया, और अभी बेच रही है वापस प्राइवेट वाले को. ओके, तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको. अच्छे से आपको इकोनॉमी ग्रो करनी है ना, तो बिजनेस शुड बी हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड मैनेजमेंट गवर्नेंस शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, लाइक डिफेंस, होम, लॉ एंड ऑर्डर. ये सब आपको गवर्नमेंट में करना है. इंफ्रा बनाना है, रोड बनाना है, रेलवे. धंधे में गवर्नमेंट को दिमाग नहीं लगाना चाहिए. दिस इज व्हाट हैपेंस इन यूएसए में गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व ओनली. गवर्नमेंट की कोई कंपनी होती नहीं है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, गवर्नमेंट डज नॉट ओन एनी कंपनी इन द US और इन द यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल. वो खाली प्राइवेट सेक्टर करता है. कैपिटलाइज इकोनॉमी बोलते हैं उसको. इंडिया वाला थोड़ा मिक्स है, कैपिटल प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसका. गवर्नमेंट भी करता है और जरूरत भी है. थोड़ा मास पॉपुलेशन गरीब है, 60-70% इज बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी.
सो उनको थोड़ा सस्ता वस्ता सब मिले, बेनिफिट्स हो, इसके लिए होता है। Now, let's come back to the topic. Okay. See, these things are important, though might not relate to the topic. ये सब बीच बीच में भी आते रहेंगे, नए नए चीजें मैं बताते रहूंगा। ये अपडेट रहने के लिए आपको जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में अपडेटेड वर्जन अभी भी नहीं आया आपका। जो शेयर्स का जो टॉपिक डाला हुआ है, एज आई टोल्ड यू, इट इज स्टिल आउटडेटेड। तो प्लीज सी टू इट यू गेन मैक्सिमम नॉलेज आउट ऑफ इट। आपको आगे जाके हायर स्टैंडर्ड में खुद को ही काम आने वाला है। ओके, सो कंपनी का आईपीओ। अभी कंपनी देखो, हम लोग इंडिया में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जैसे कि रिलायंस बोलो या बिरलास बोलो, आदित्य बिरला ग्रुप की, या फिर बजाज बोलो, बजाज फिनसर्व, संजीव बजाज, राहुल बजाज, बजाज ऑटो,